from Department of Geology, Government VYTPG, Autonomous College, Durg. And today my topic is cells of immune system. So immunity and immune system के बारे में है. तो मैंने इसे दो पार्ट में किया हुआ है. Part one here I am going to discuss about the cells of the innate immune response. In the part 2 we will discuss about the cells of the adaptive or acquired immune response. So let's start with our first slide. So first slide is about an introduction about the immune system. So what is immune? Immunology, the science which deals with the study of the immune system. We refer it as immunology. And what is the main function? So what our immune system do? Our immune system protect us from the environmental agents, protect us from chemicals, and in this way they are actually preserving our body. And this is done by the recognition of the self and response to non-self. This is a very important part, very important function and uniqueness of our immune system, that they can actually differentiate between the self and non-self. Otherwise we will be sufferer of autoimmune diseases. How they function? They function in three way. They provide us defense in three way. That is the first line of defense, second line of defense, and third line of defense. So first line of defense is the skin and mucous membrane. You can refer it, you can understand it like that in our country we have a borders and there are border security forces. So like that, where the first line of defense is skin and mucous membrane that covers our entire body. Then the second line of defense is innate immunity. Actually skin and all this comes under innate immunity. So innate immunity, all those immune cells which immediately take actions against the microorganism, and it is not specific. They act in same manner against all those things which they consider as non-self. And the third line is the adaptive immunity and innate immunity. What is the main differences between that? That innate means inborn. Those things, those traits, those character we have since our birth. We having that since our birth, those characters, they are called as innate. So those immune cells which have from the very beginning of our life. And active immunity, which we learned through our life process, our days. So that is adaptive immune system. So it takes several days. So first actually it encounters with the antigens, and then it recognizes it, and then it takes its action. So in the first time, in the primary response, it takes several time, but it has its memory. So in the next encounter, it do not take any time. Within no time it come into its action. That is the adaptive immune system. So component of the immune system, like any organ system, there are many organs which actually works together in a coordinated manner to do a certain work. Like that, immune system is also composed of many organs and cells. They together forms the immune system. So the organs which are responsible for the immune systems are primary lymphoid organ, secondary lymphoid organs mainly. So primary lymphoid organ is mainly bone marrow and thymus gland. So bone marrow is that organ from which all the immune cells are actually formed. And thymus gland, where some lymphocytes get matured, get training to do their work. And secondary lymphoid organs is the lymph nodes, spleen and mucosa associated lymphoid tissues, और जिसे हम माल्ट भी कहते हैं, इस तरह से गाल्ट भी होता है. So they are all secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organ here actually they come in direct interaction with the antibodies, with the antigens. So cells we can differentiate for our convenience for all the immune cells into three main groups, that is lymphocytes, B lymphocytes, T lymphocytes and NK cells. Granulocytes, they mainly are composed of neutrophils, eosinophil, basophil mast cells, and phagocytic cells, mainly monocytes, macrophages, dendritic cells. They are also APCs, that is antigen
presenting cells. They are very important. And one thing you should note it here, that all those cells which are written here, they are actually a type of WBC cell. So mainly जो हमारा blood system होता है उसमें जो WBC होता है, white blood cells होता है, they deal with the immune response of our body. ओरिजिन ऑफ द इम्यून सेल्स, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी प्री नेटल लाइफ में अगर देखें और पोस्ट नेटल लाइफ मीन्स आफ्टर द बर्थ. सो एम्ब्रियोनिक लाइफ फीटल जो फीटस का लीवर एंड यॉर्क सेक होता है, दैट इज डीलिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द इम्यून सेल्स. एंड आफ्टर बर्थ दैट इज बोन मैरो जहाँ पे हीमोपोइसिस का जो प्रोसेस है, ब्लड सेल जनरेशन का जो प्रोसेस है, वो बोन मैरो में होता है. आफ्टर postnatal, it is only and only in the bone marrow. So this is the generation of the immune cell. तो generation of the immune cell जो stem cell है, hemopoietic stem cell कहते हैं क्योंकि यहाँ से blood cells बन रहा है. इसमें से 3 main lineage होता है, that is lymphoid lineage, myeloid lineage and erythroid lineage. Erythroid, as the name goes, this will deals with the formation of the RBCs, and lymphoid it will form lymphocyte cells. Lymphocyte cells are of mainly 3 types, that is B cell, T cell and NK cells. NK cells means natural killer cells. And myeloid origin, there are mainly neutrophil, eosinophil, basophil, dendritic cells, mast cells and macrophages. So these are the different type of cells which all originate from the, actually they all originate from the bone marrow. Now in this part I am dealing with the cells responsible for the innate immunity. So as I have already told you, what is innate immunity? Innate immunity means those immunity which we have since our birth. जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारे पास ये इम्यून सिस्टम होता है, तो इसलिए हम इसे innate immunity कहते हैं. हमें जन्म से मिला हो कोई चीज, that is referred as innate. So what are the features, main features? तो इसका जो मेन यूनिकनेस होता है, दैट इज इट इज नॉन स्पेसिफिक. ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है. जो भी चीज को ये नॉन सेल्फ समझेगा, फॉरेन समझेगा, उसके साथ वो एक ही जैसा व्यवहार करेगा. दैट इज नॉन स्पेसिफिक. इमीडिएट एंड रैपिड डिफेंस. सबसे पहले कोई भी अगर नॉन सेल्फ या एंटीजन हमारे बॉडी में रिकॉग्नाइज होता है तो सबसे पहले डिफेंस जो है वो इनेट इम्यून सेल्स करता है. ये लगभग सभी एनिमल और प्लांट स्पीसीज में पाया जाता है. इससे पहले किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. नीड्स नो एक्सपोजर, बिकॉज इट विल एक्ट एनीथिंग विच इट डिसाइड्स एट नॉन सेल्फ, एंड it is not associated with any memory cells. Now the function. What is function? It kills invading microbes, it eliminates damaged cells and initiate the process of tissue repair, and it also activate the acquired immune system. जो हमारा adaptive immune system है उसको ये activate करता है. Now the components of the innate immunity. तो first is the physical barrier, that is the skin, mucous membrane. Cells में होते हैं phagocytes, NK cells, granulocyte cells, and proteins में जो mainly होता है that is complement, acute phase proteins and interferons. Here I will deal with the cells. So let's start with the cells. So the first is neutrophils. न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि आपने देखा था, ये माइलॉइड लिनियाज से इसका डेवलपमेंट होता है. इसका दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर फेजोसाइटोसिस. दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर द फेजोसाइटोसिस. जो है फेजोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेशन, ये दो इसके मेन मुख्य काम होता है जिसके द्वारा ये हमें प्रोटेक्शन देता है. इसका जो डायमीटर है, इसका जो पहचान है वो है कि दिस इज मल्टी लोब्ड. आप देख रहे हो, दिस इज मल्टी लोब्ड. और इसके लोब्स जो है वो जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है इसका लोब्स बढ़ता है. जो यंग होगा उसमें, यंग न्यूट्रोफिल होगा उसमें आपको सिर्फ एक ही लोब देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे विद द टाइम पैसेज इसका जो लोब्स है वो बढ़ता जाता है. इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे आर हैविंग सम ग्रेन्यूल्स, दैट इज द प्राइमरी ऑजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स एंड सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होता है. बाकी इसका जो डायमीटर है, दिस इज समथिंग 10 to 14 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है. इट इज कंटिन्यूसली जनरेटेड. इसका मैच्योरेशन जो है दैट इज अबाउट 10 to 15 days. हाफ लाइफ इज अबाउट 4 to 10 hours.
और इसमें कई तरह के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं. This is having cytoskeletons like microfilament and microtubules. One of the very important character of a neutrophil is that they can migrate. They can migrate. That means they can travel from one place to another place. And one again important characteristic feature is dipidesis. That is, they can move within the transmembrane. They can move out from the endothelial cells of the blood vessels and come into the tissues. वो blood vessels से बाहर निकल के tissues में आते हैं जहाँ पर उसे infection मिलता है या जहाँ उसे antigen मिलता है. तो these are two very important character of the neutrophil. और उस movement के लिए उसके पास specially होते हैं उस cells में microfilaments and microtubules which helps in locomotion and chemotactic function. इनके द्वारा इनमें जो ये movement मिलता है. Chemotaxis का मतलब होता है if something is attracted towards the chemical released by the damaged tissues or bacteria or antigen, whatever. Phagocytosis, I have already told you, it gives us protection by phagocytosis, by the process of phagocytosis. Phagocytosis का मतलब होता है, phago का मतलब होता है खा लेना, किसी को खा लेना, that is phagocytosis. तो ये एंटीजन को अपने अंदर लेकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है ग्रेन्यूल्स. और इसे अगर स्टेन करना हो तो हम न्यूट्रल स्टेन से इसे स्टेन कर सकते हैं क्योंकि इसके ग्रेन्यूल्स जो है वो न्यूट्रल, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूट्रल स्टेन से डाई होता है. Now this is the stages in the development of the neutrophil. So you are seeing you can see through this table different stages, that is myeloblast, promyeloblast, myelocyte, metamyelocyte, band form, and finally it matures into neutrophil. So there are different way how we can differentiate. We can differentiate because of the presence of the different surface markers or characteristic features. So in myeloblast and promyelocyte, if you see, they have the same surface marker, that is CD33, CD13 and CD15. Both the stage have the same surface markers, but their characteristic features, in the first stage you can see that this is having only single nucleus. There is no lobes. So, but the nucleus is prominent, larger in size. In promyelocyte also you can see that the nucleus is not lobed, but granules appears here. Here primary granules appear. Then come to the third stage, that is the myelocyte. Now in the myelocyte C33, C13 और C15 के अलावा यहाँ पे आपको दो और मार्कर देखने को मिल रहा है, that is CD14 and CD11B. CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. सो ये CD जो है इसमें नए डेवलप होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स भी रीअपियर होता है. नेक्स्ट स्टेज इन इट्स डेवलपमेंट इट इज कॉल्ड एज मेटामाइलोसाइट. मेटामाइलोसाइट में these are the markers, same markers, but now see there is a changes in the shape of the nucleus. It has become kidney bean shaped nucleus. Then band form में और भी नए markers देखने को मिलते हैं, that is CD10, C and CD16. और यहाँ पे जो nucleus है that develop condensed band shaped nucleus it is having. Then when finally it develop into neutrophil, you see its nucleus become multi-lobed. So now multi-lobed nucleus it has developed and it is having the same markers which it is in the band form. So this is about the different stages of the development of the neutrophils. ये डायग्राम में मैंने एक्चुअली स्पेशली आपको दिखाया है कि किस वक्त क्या इसमें जो ग्रेन्यूल्स है वो डेवलप होते हैं. So during the stages of myeloblast and promyeloblast, the granules develop, we called it as primary or aerophilic granules. जो पूरे granules हैं हम उसको primary, secondary, tertiary and secretory granules कहते हैं. तो myeloblast और promyelocyte के समय primary या aerophilic granules होते हैं. मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं कि वो क्या क्या granules है. That is myeloperoxidase, neutrophil, elastase, cathepsin G, proteinase 3, azuridine, defensins, bacterial permeability increasing protein. So these are all primary या aerophilic granules. Then जब myelocyte और metamyelocyte का stage रहता है, it develops secondary or specific granules, that is like lactoferrin, catholycidin, collagenase, lysozyme, leucolysin, cytochrome B,
all are the secondary type of. Then when neutrophil enters into the band neutrophil and segmented neutrophil stage, it develops tertiary या gelatinous granules like gelatinous enzyme, lysozyme, leucolysin, cytochrome B. So these are the different type of the composition of the granules. And secretory granules, these are some of the plasma proteins which they developed during when finally neutrophil matures. So in the mature neutrophil we will have primary granules, secondary granules, tertiary granules and secretory granules. So I have shown here in different developmental stages what type of granules it develops. Now the function of the granules. प्राइमरी ग्रैन्यूल का मेन फंक्शन होता है ROS, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड किलिंग विद इन द फेजोसोम. सेकेंडरी ग्रैन्यूल का काम होता है इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर किलिंग. टर्शियरी ग्रैन्यूल्स helps in the migration and extravasation of the neutrophil. जो मैंने आपको पहले कहा था कि one of the most important character of neutrophil is that it can travel in the blood vessel, it can travel out of the blood vessels. That is the one of the very unique character of neutrophil. And this traveling is helped by the tertiary granules. And secretory granules, again it is helping in its process of the traveling, that is adherence. Migrations of neutrophils. So जो मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं आपको एक्चुअली बताने वाली हूँ about the migration and the function, that is phagocytosis. जो मेन काम होता है न्यूट्रोफिल का वो होता है inflammation and phagocytosis. So when it get intimated that there is some antigen somewhere, so some chemical factors कहना चाहिए कुछ chemical factors जो secrete होता है बैक्टीरिया से या हमारे blood vessel से, जो attract करता है, जो intimate करता है न्यूट्रोफिल को कि there is some foreign, some non-self there, so it start activating, so it become activated. So the first is it should become activated. So when it become activated, the first process start is that is called as margination. Margination मतलब हम न्यूट्रोफिल के पॉपुलेशन को बोल सकते हैं कि कितना वो सर्कुलेटिंग ब्लड में है और कितना वो एंडोथीलियल सेल यानी ब्लड वेसल के एक पर्टिकुलर एरिया में है. तो अगर दैट गेट एग्रीटेड इन द particular area of the blood vessel, we called it as margination. That is called as margination. So here I have written that leukocyte become redistributed closer to the blood vessel. So ये देखिए, ये जो आप यहाँ देख रहे हो this green, ये जो आप देख रहे हो this is blood vessel actually, और ये इसका endothelial cells है blood vessels का. and neutrophil जो यहाँ से travel कर रहे थे flow कर रहे थे, that neutrophil now becoming closer to the endothelial cells. Some neutrophils are becoming closer to this endothelial cells. This is called as margination. And they are getting adhered to there. Now how the traveling start, how they come out of the blood vessels into the tissue. Now this is the blood vessel and this is the tissue. So in the blood vessel, first it will start rolling, then it will adhere. ये सबसे पहले रोल करेगा, उसके बाद ये वहां जाके स्टिक हो जाएगा और उसके बाद डायपाइडिसिस होगा, उसके बाद उसका निकल के वो माइग्रेशन एंड देन पोस्ट माइग्रेशन एंड देन फेगोसाइटोसिस. तो फर्स्ट इज द रोलिंग एडिशन ऑफ न्यूट्रोफिल टू द एंडोथीलियम is mediated by L-selectin on the neutrophil and P and E-selectin on the endothelium. तो रोलिंग करने के लिए जो चीज हेल्प करता है वो न्यूट्रोफिल में जो होता है वो होता है L-selectin फैक्टर, और जो एंडोथीलियम में होता है वो P and E-selectin फैक्टर है. तो इससे हेल्प करता है उसे रोल करने में एंड उसे एडहेयर करने में, उसे स्टिक करने में ब्लड वेसल के साथ. सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज डायपाइडिसिस. यहाँ पे सबसे पहले आप एडिशन देख लो. तो एडिशन जो है दैट इज मीडिएटेड बाय द इंटीग्रीन प्रोटीन. जब ये रोलिंग करना शुरू होता है और दोनों का एंडोथीलियल एंड फेगोसाइट सेल का जब सिलेक्टिन आपस में जब उनका कॉम्प्लेक्स बनता है तो इट एक्टिवेट द इंटीग्रेट प्रोटीन.
तो सब इंटीग्रीन प्रोटीन जो है उससे हेल्प करता है. दिस इंटीग्रीन प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है उसको एडहेयर करने में और उसको डायपाइडेसिस करने में. तो नेक्स्ट इज होता है डायपाइडेसिस. अगर आप इस को देख रहे हैं, दिस इज डायपाइडेसिस. आप देखिए ये सेल्स है, दो एंडोथेलियल सेल है, उसके बीच का पोर है और उस पोर से ये जो है अपने को स्क्वीज कर रहा है. इट कैन चेंज इट शेप. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यूट्रोफिल दैट इट कैन स्क्वीज इटसेल्फ, इट कैन चेंज इट शेप एंड नाउ इट इज coming out of that pore. So that is called as diapidesis. When it comes out, it squeezes and comes out from the spaces between the endothelial cell to the tissue. So this is diapidesis. और यहाँ पे देखिए ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है. ट्रांसमाइग्रेशन यानी दो जगह से माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह का माइग्रेशन. सो ब्लड वेसल से जो माइग्रेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है. सो दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन of the neutrophil from the intravascular component to the site of infection by deformation and elongation from blood vessel wall. तो यहाँ पे from होगा. सो ये माइग्रेशन हो गया और यहाँ पे एक्चुअली इन्फेक्शन है. यहाँ पे अगर आप ये दो स्पॉट देख रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली द इन्फेक्टेंट एजेंट और इसका जो अब न्यूट्रोफिल आकर क्या कर रहा है, फेजोसाइटोसिस कर रहा है. तो दिस इज द होल प्रोसेस हाउ इट एक्चुअली एनकाउंटर द एंटीजन. साइटोसिस जो कि उसका फंक्शन होता है, द वे न्यूट्रोफिल एक्चुअली प्रोटेक्ट आवर बॉडी, प्रोवाइड अस इम्यूनिटी. तो दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फेजोसाइटोसिस. सो फेजोसाइटोसिस का जो मेन प्रोसेस होता है, दैट इज जो स्टेप्स होता है इन द फेजोसाइटोसिस, दैट इज एक्टिवेशन, केमोटेक्सिस, मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडिशन एंड डायपाइडेसिस, देन रिकॉग्निशन, अटैचमेंट एंड देन किलिंग. And killing depends on it is in the one of the two ways, that is oxygen dependent pathway and oxygen independent pathway. So first already मैं ये चार चीजें आपको बता चुकी हूँ, but again I am that activation. First neutrophil should be activated. It should know कि there are some antigens somewhere in our body and we need to protect and it have to do its job. So that is by the process of activation. So resting phagocytes जो होता है, they become activated by some mediators like bacteria, protein, capsules, peptidoglycan, prostaglandins, complement proteins and many more. The result is they gain their ability to leave the capillaries. तो जब ये प्रोसेस होता है तो तब इनमें जो प्रोसेस होता है ट्रेवल करने का, ट्रांसमाइग्रेशन करने का, so that activation develops, that property it develops when it become activated. So it will move. Now it will gain the ability to leave the capillaries and enter the tissue. That this whole process is called chemotaxis because of some chemical factors like peptidoglycan, proteins, prostaglandins, उनकी वजह से वो activate हुआ. तो this is chemotaxis. Now phagocytes switch to a higher energy level. This usually involve rearrangement of the cell cytoskeleton and swelling of the cells. Swelling होता है because of the increase in the concentration of the calcium and sodium ion. जो मेम्ब्रेन के अंदर उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो माइग्रेशन है उनका बढ़ जाता है, कैल्शियम एंड सोडियम का जो है वो बढ़ जाता है और उनका साइटोस्केलेटन में चेंजेस आता है. इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सोडियम एंड कैल्शियम आयन एंड साइटोस्केलेटन में चेंजेस आता है, तो तभी वो अपने शेप में चेंज कर सकता है. इट कैन चेंज इट शेप, इट कैन स्क्वीजेस हिमसेल्फ आउट ऑफ द सेल. सो then phagocyte also produce pattern recognition receptors, PRRs इसका abbreviate form है, which recognize and bind to pathogen associated molecular pattern. Now this is very important कि how they recognize कि that is not my own cell, my own body cell, and how it will bind. So there are two things. Phagocytes में पाया जाता है pattern recognition receptor and पैथोजन में पाया जाता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. तो दोनों एक दूसरे को जब रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, तो दे बिकम एसोसिएटेड विद ईच अदर, दे बिकम अटैच्ड, दिस बोथ रिसेप्टर्स अटैच्ड विद ईच अदर, तो दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बिटवीन द
PRR and PAMPs. PAMPs are component of pathogens and can include molecules like peptidoglycan and lipopolysaccharide. Then I have already told you what is chemotaxis. That is the directional movement of phagocyte towards the pathogen. जो पैथोजन है उसकी तरफ उसे मूव करना है, उसे ब्लड वेसल से हो सकता है बाहर निकलना पड़े, तो वो सारा जो प्रोसेस होता है, जो होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस. एंड कीमोटैक्सिस के लिए जो कीमोटैक्सिन्स है, जो फैक्टर्स है दैट आर कीमोटैक्सिन्स इंक्लूड बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, इंजर्ड टिश्यूज और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स लाइक C3A, C4A, C5A and chemical substances produced by the leukocytes. The process of chemotaxis is usually coupled with activation. Now next is, now neutrophil will reach towards the infectious agent या infectious cell. तो वो प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुकी हूँ कि ये कैसे रोल एडिशन और डायपाइटेसिस करता है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग हियर अगेन. एंड देन रिकॉग्निशन अटैचमेंट, ये भी आपको मैंने बताया था कि देयर विल बी ए receptor in the phagocyte which we called as PRR, and there will be a receptor in the pathogen that is PAMP. So though both will recognize each other and there will be attachment between both the receptors, and this is very specific, and this is the whole process of phagocytosis. तो जो आपने देखा कि ये जो है पूरा phagocytosis है, so this is microbes और पार्टिकल है, जो भी पैथोजन है या एंटीजन है. सो दिस इज न्यूट्रोफिल, दिस होल वायलेट कलर का जो मैंने बनाया हुआ है, दिस इज द होल न्यूट्रोफिल. एंड देखिए कि ये न्यूट्रोफिल जो है, दिस इज फॉर्मिंग, ये जो है ये अब स्यूडोपोडिया डेवलप करता है, ये स्यूडोपोड्स है, ताकि, और ये स्यूडोपोडिया जो है धीरे धीरे इसको पूरा अंदर लाके कवर कर देता है. नाउ जब पूरा इस जो एंटीजन है दैट इज सराउंडेड बाय ए वेसिकल, वी कॉल इट एज फेजोसोम्स. जब ये फेजोसोम्स बनता है तो इसमें जो लाइसोसोम्स है दे बिकम अटैच्ड विद द फेजोसोम, देन लाइसोसोम बर्स्ट, और लाइसोसोम के अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है दैट come in contact with the antigen, and then antigen is digested or neutralized, and then it is thrown out of the cell. So this is the whole process of phagocytosis. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये दो तरीके से होता है. एक होता है ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे और एक होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे. सो इन ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे it involves the generation of reactive oxygen species, that is ROS, such as superoxide radical and hydrogen peroxide. This highly reactive radical molecule actually react with the protein, lipid and other biological molecules to kill the pathogens. तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जनरेट होते हैं, और वो ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, वो पैथोजन का जो प्रोटीन, लिपिड, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड इट हेल्प्स इन किलिंग द पैथोजन. सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स आर इनिशियली प्रोड्यूस्ड via the enzyme NADPH oxidase and subsequently converted to hydrogen peroxide by the enzyme superoxide dismutase. Superoxide radicals can also react with the hydrogen peroxide to form powerful hydroxyl radical which assist in killing the pathogen. तो इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीडेंट्स बना के वो ऑक्सीडाइज करके किल करता है. दूसरा होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे. इट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन वाया लाइसोसोमल एंजाइम सच एज प्रोटियसेस, फॉस्फोलाइपेसेस, न्यूक्लियसेस या लाइसोजाइम. तो यहाँ पे एंजाइम किस तरीके का एंजाइम है, जैसे प्रोटियसेस यानी प्रोटीन को डिसॉल्व कर देगा, फॉस्फोलाइपेसेस यानी फॉस्फोलिपिड को, न्यूक्लियसेस यानी न्यूक्लियस को. तो यहाँ पे वो जो है ऑक्सीडेंट का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, उसके अलावा वो किल करता है, तो देन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट इंडिपेंडेंट पाथवे. Neutrophil, the next cell is eosinophil in the innate immune system. तो eosinophil जो है ये भी माइलॉइड
जो लिनियाज है उसी से डेवलप होता है। हमारे वाइट ब्लड सेल का टोटल 1 to 6% का प्रोपोर्शन जो है का बनाता है योसिनोफिल। इसका साइज जो है 12 to 17 माइक्रोमीटर होता है। हाउ यू विल आप पहचानेंगे कैसे, तो ये इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। इट हैज गॉट बाइलोब न्यूक्लियस। इसके अलावा इसमें लिपिड बॉडीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस वगैरह तो है। इसमें भी कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सम ग्रेन्यूल्स और इट इज ऑलवेज हैव बाइलोब न्यूक्लियस। You can stain it with acidic dyes like eosin. Where it is located? It is located in the medulla and junction between the cortex. ये medulla में पाया जाता है। इसके अलावा in the junction between the cortex and medulla of the thymus. इसके अलावा gastrointestinal tract में ovary, uterus, spleen and lymph nodes, इन सब जगहों पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। नाउ योसिनोफिल क्या क्या प्रोड्यूस करता है, इसके जो ग्रेन्यूल्स है वो मैंने इस डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाया हुआ है। तो योसिनोफिल जो है इट प्रोड्यूस साइटोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्रिन्स एंड एंजाइम्स विच कैन इनहिबिट द इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ मास्ट सेल। तो कुछ चीजें ये वो भी प्रोड्यूस करता है जो इन्फ्लेमेशन को रोकने में मदद करता है। इन्फ्लेमेशन जो मेनली बेसोफिल और मास्ट सेल करवाता है उसके द्वारा होता है, तो इट समटाइम रेस्ट्रिक्ट्स। इट ऑल्सो हैव FC रिसेप्टर्स फॉर IgG एंड IgE एंटीबॉडीज। सो इसके पास कुछ FC जो है रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे आकर इम्यूनोग्लोबुलिन G और इम्यूनोग्लोबुलिन E एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा C3b भी होता है, तो ये ऑप्सोनाइजेशन का भी काम करता है। थर्ड जो होता है, दे कैन सिक्रेट एंटीबायोटिक ग्रेन्यूल कॉन्टेंट्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज टू ब्रिंग अबाउट द डैमेज टू द टारगेट। जैसे यूसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन है, परऑक्सीडेज है, न्यूरोटॉक्सिन है, तो ये सब जो है पैथोजन को किल करने में मदद करता है। जेनेसिस ऑफ योसिनोफिल, कैसे ये जेनेसिस होता है, तो दिस इज द डिफरेंट स्टेजेस। So first it will develop into myoblast, then promyeloblast, then eosinophil myeloblast, eosinophil metamyeloblast, then eosinophilic band, and finally into eosinophil. तो जब इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो इट डेवलप फ्रॉम माइलॉइड प्रिकॉर्सर सेल in response to the cytokines interleukin 3 and interleukin 5. This helps in the genesis of the eosinophil, and also granulocyte macrophage colony stimulating factor. They are essential for the genesis, for the formation of the eosinophil formation and maturation of the eosinophils. Now what are the basic function of the eosinophil? So they also contain some major basic proteins like neutrophil. न्यूट्रोफिल में भी जैसे पाए जाते थे मेजर बेसिक प्रोटीन्स, ये भी होते हैं लाइक along with eosinophilic peroxidase and other enzymes and toxics that act to kill parasitic worms or helminths. So ये जो बड़े पैथोजेंस होते हैं उनको भी ये किल करता है, मेनली लाइक हेलमिंथ और वर्म्स होते हैं उनको किल करने में योसिनोफिल जो है वो अपना इट प्लेस रोल इन किलिंग वर्म्स एंड अदर सब्सटेंस by exposing them to toxic substance like nitric oxides. Eosinophil also modulate inflammatory responses by releasing chemokines, cytokines and lipid mediator. It also plays a role in inflammatory responses. They also remove antigen antibody complexes from the interstitial fluid by phagocytosis. जब phagocytosis होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको रिमूव करने में अपना रोल प्ले करता है. इट सिक्रेट कैटायन प्रोटीन विच न्यूट्रलाइजेस हिपेरिन. इट रिलीजेस एंटीहिस्टामिन which inhibit the inflammatory response, limiting the spread of inflammation to adjacent टिश्यू. तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ने से रोकता है, एलर्जिक रिएक्शन को कम करने में ये हेल्प करता है बिकॉज इट रिलीजेस एंटीहिस्टामिन. कीमोटैक्सिस इज ऑल्सो शोन बाय eosinophil. So these are the functions of eosinophil. Next cell is basophil. Basophil जो होता है काफी
कम इसका परसेंटेज है, इट इज जस्ट लेस देन 1% ऑफ द टोटल ब्लड ल्यूकोसाइट्स। इसका न्यूक्लियस जो है वो एस शेप्ड का होता है या बाइलोब्ड भी होता है, आप देख रहे हो, इट इज बाइलोब्ड, समटाइम इट इज ट्राइलोब्ड। It contain histamine. This is very important factor, that it has granules which releases histamine. Large cytoplasmic granules which obscure the cell nucleus. Now इसका जो survive है वो 3 to 7 days है, और इसको अगर स्टेन करना हो तो we can stain it with some basic dye like methylene blue. इसका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होता है उसमें जो पाए जाते हैं मेनली दे आर हिस्टामिन, मेजर बेसिक प्रोटीन, हेपेरिन, परऑक्सीडेज, योसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, कॉन्ड्रोइथिन सब्सटेंसेस, सीरोटोनिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एक्सेट्रा. Formation of basophil. So it is also generated from the myeloid progenitors. So myeloid progenitor जिसमें CD34 मार्कर होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब इस माइलॉइड प्रोजेनिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद और एक्टिवेटेड बाय इंटरल्यूकिन 3, so that will develop into basophil. If with the help of interleukin 5, interleukin 3 and GM-CSF, then it will develop into basophil. And when it come in contact with stromal chemical factor, तो then it will develop into mast cell. जब SCF के कांटेक्ट में आएगा तो वो mast cell में डेवलप होता है. Now the function of the basophil. The granule inside the basophil contain histamine और heparin. तो histamine जो है ये vasodilator होता है, तो it helps in inflammation. It create inflammation, और अगर बहुत aggressive होता है तो it also leads to allergic reaction. सेकेंड जो होता है बेसोफिल है प्रोटीन रिसेप्टर ऑन द सेल सर्फेस दैट बाइंड इम्यूनोग्लोबुलिन E, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व्ड इन मैक्रोपैरासाइट डिफेंस एंड एलर्जी. The histamine that is released by basophil is one of the causes of the symptoms of common seasonal allergies. Then heparin. Heparin is a blood thinning substance produced by the body that prevents blood clots at the site of infection. तो blood clotting को रोकने में हेल्प करता है heparin. Recent studies in mice suggest that basophil may also regulate the behavior of T cells and mediate the magnitude of the secondary immune response. कुछ recent studies हुई है mice पे जो ये भी ये शो कर रहा है कि might be basophil in some way or other way regulate the secondary immune response also. Next cell is mast cell. मास्ट सेल जो है काफ़ी हद तक ये जो है बेसोफिल जैसे ही होता है. इसका मैंने डेवलपमेंट में आपको बताया था कि मास्ट सेल जब माइलॉइड प्रोजेनिटर जब SCF के कांटेक्ट में आता है, जब SCF से एक्टिवेट होता है तो दैट सेल डेवलप्स इनटू मास्ट सेल. पीछे चलते हैं. सो मास्ट सेल जो है इसका जो न्यूक्लियस है ये ओवल या राउंड शेप का होता है, एंड मास्ट सेल का जो डायमीटर होता है अबाउट 10 to 30 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है. पॉलीमॉर्फस न्यूक्लियस होता है. कई प्रकार के न्यूक्लियस हो सकते हैं इनमें, उनका शेप बाई शेप, पॉलीमॉर्फिक मीन शेप. द सेल्स आर सिमिलर टू द बेसोफिल्स ऑफ द ब्लड इन अपीयरेंस एंड इन फंक्शन. मास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सेल. कैरेक्टरिस्टिकली जहां ये पाए जाते हैं मेनली दैट इज अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, स्किन, म्यूकोसा ऑफ द लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज माउथ, कंजक्टिवा एंड नोज. इसके अंदर भी ग्रेन्यूल्स होते हैं. तो द ग्रेन्यूल्स ऑफ द मास्ट सेल जो है वो रिलीज करता है, जो ग्रेन्यूल्स में जो पाए जाते हैं दैट इज सीरोटोनिन, हिस्टामिन, हेपेरिन, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स. मास्ट सेल मेनली दो टाइप के मास्ट सेल हो सकते हैं, दैट इज म्यूकोसल मास्ट सेल एंड कनेक्टिव मास्ट सेल. म्यूकोसल मास्ट सेल जो कि म्यूकोसा में पाए जाते हैं, स्पेशली म्यूकोसा विच आर लाइनिंग द लंग्स एंड गट एलिमेंट्री कैनाल. द सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन lymphocyte for differentiation. Connective tissue mast cell present at the site of immediate hypersensitivity reaction. अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे मास्ट सेल, तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं
हेयर लाइक स्ट्रक्चर है. सो दिस इज शोइंग यू न्यूमरस लार्ज एंड लॉन्ग विलाई एट द पेरिफेरी. ये सब जो है ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाता है कि मास्ट सेल कंटेन टू कंपोनेंट्स, दैट इज लेमिले एंड इलेक्ट्रॉन डेंस फाइन ग्रैन्युलर मटेरियल. डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब ये स्टेम सेल फैक्टर या स्ट्रोमल सेल फैक्टर के संपर्क में आता है, व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट, when it activate the myeloid hematopoietic progenitor, so mast cells develops. Mast cell activation and function. So mast cell activation जो है दो तरीके से होता है. First is antigen dependent aggregation of FcRI bound IgE on the surface of the mast cell is a primary mechanism of the activation of the mast cell. सो ये एंटीजन IgE में डिपेंडेंट रहता है. एक इसका एक्टिवेशन होता है व्हेन इट बाइंड्स विद द IgE यानी इम्यूनोग्लोबुलिन E एंटीबॉडी, एंड देन इट रिलीज सब मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा. सो दैट इज वन वे ऑफ इट्स एक्टिवेशन. और दूसरा एक्टिवेशन होता है जब ये IgE पे डिपेंडेंट नहीं रहता है. सो बिना IgE के अगर नहीं है तो सम सिग्नल्स लाइक सच एज लाइपोपॉलीसेकेराइड, C3a, C5a, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस जो है कुछ होते हैं, वो भी मास्ट सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं. तो दो तरीके से मास्ट सेल एक्टिवेट होता है. एक या तो वो IgE के कांटेक्ट में होता है, IgE उसको एक्टिवेट करता है, या फिर कुछ रिसेप्टर्स लाइक लाइपोपॉलीसेकेराइड, C3a, C5a, कीमोकाइंस जो है वो उसको एक्टिवेट करता है. तो दो तरीके से वो एक्टिवेट हो सकता है. इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज इट प्लेज रोल इन इमीडिएट इन्फ्लेमेशन, एलर्जी एंड एनाफाइलैक्सिस. दे possess receptors for complement components like C3a and C5a as well as receptors for the Fc portion of the IgE and IgG antibody. The stimulation by this receptor can result in activation and secretion of vasoactive substance that increase vascular permeability and dilation, two important sign of anaphylaxis. तो anaphylaxis जो होता है उसके लिए it should become activated by the complement components or by immunoglobulins, especially by immunoglobulin E. Third is mast cell can synthesize de novo other inflammatory mediators such as the slow reacting substance of the anaphylaxis. Anaphylaxis दोनों तरीके से होता है, एक फास्ट और विगरस होता है और एक स्लो होता है. तो जो स्लो के लिए भी ये अपना रोल प्ले करता है बाई secreting mediators like SRSA, tumor necrosis factor and leukotriene. So these are the function about the mast cell. नेक्स्ट इज डेंड्राइटिक सेल्स. डेंड्राइटिक सेल जैसे कि आप नाम ही देख रहे हैं, इसमें जो है डेंड्राइट्स पाए जाते हैं. आपको नर्व सेल वगैरह आपने न्यूरॉन सेल पढ़ा है, उसमें आप पढ़ते हो कि डेंड्रॉन्स होते हैं. तो दिस आर द डेंड्रॉन्स, ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं साइटोप्लाज्म के, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं. सो डेंड्राइटिक्स जो होता है इट इज नेम्ड फॉर देयर ट्री लाइक और डेंड्राइटिक शेप्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है डेंड्राइटिक सेल्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज एन APC. इसके बाद इसको सबसे पहले इसके बारे में बताया था पॉल लैंगरहैंस ने, लेकिन उसने उसे क्यूटेनियस नर्व सेल समझ लिया था क्योंकि नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन बाद में इसको डिस्क्राइब किया था राल्फ स्टेनमैन ने. इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड वेरियस ऑर्गेनेलीज. इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गेनेलीज. इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो लोब्यूलेटेड होता है. इसमें स्पाइन लाइक प्रोसेस पाई जाती है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, इसलिए इसका नाम ही है डेंड्राइटिक सेल्स. इसका जो स्पेरिकल ग्रेन्यूल्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेरिकल ग्रेन्यूल्स विच आर मेम्ब्रेन लिमिटेड, यानी ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, और साइटोप्लाज्मिक
माइक्रोफिलामेंट, इसके सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं. मेनली वेयर दे आर लोकेटेड मेनली इन लार्ज नंबर इन द स्किन, in the inner lining of the nose, lungs, stomach and intestines and in the blood. Subsets of dendritic cells. तो ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आपको सबसेट्स भी दिख रहा है और उसका जेनेसिस भी दिख रहा है. नेचुरली इट इज माइलॉइड जनरेटेड. वहां से जो है इसका दो मेन लिनियाज बनता है, एक माइलॉइड भी है और एक लिम्फॉइड भी है. तो आप यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देंगे कि दिस इज एक्चुअली वर्किंग for the innate immune system also and for the adaptive immune system also, क्योंकि इसको बनाने में माइलॉइड प्रोजेनेटर का भी हेल्प है और ये लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से भी इसकी जेनेसिस होती है. तो जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर है ये जब एक्टिवेट होता है तो दे गिव राइज टू सम टाइप्स ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स लाइक लैंगरहैंस सेल्स, इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल्स एंड माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स. और जो लिम्फॉइड जनरेटर है वहां से जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल और इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा साइटोइड डिसीज डेंड्राइटिक सेल्स. इसे प्लाज्मा साइटोइड डिसीज अगर बोले तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि इसका जो जनरेशन हुआ है वो लिम्फॉइड सेल से हुआ है. सो जो इसका मेन सबसेट्स है तो इमेच्योर, मैच्योर तो है, बट जो मेन है आई वांट टू टेल अबाउट दैट इज कन्वेंशनल डिसीज. इसका मेन सबसेट जिसको कन्वेंशनल डिसीज बोलते हैं जो कि माइलॉइड प्रोजेनिटर से बनता है. तो जो माइलॉइड प्रोजेनिटर से डेंड्राइटिक सेल बनता है उसे हम कन्वेंशनल डीसी कहते हैं. एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू लैंगरहैंस सेल्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरस्टिशियल और माइलॉइड. नेक्स्ट जो होता है सेकेंड टाइप जो होता है जैसे कि मैंने बताया था प्लाज्मा साइटोइड डिसीज, यानी इसका जो जनरेशन है वो किससे हो रहा है, वो लिम्फोसाइट सेल से हो रहा है. वो लिम्फॉइड जो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स है उससे डेवलप हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा साइटोइड डिसीज. तो दो सबसेट है अकॉर्डिंग टू इट्स जेनेसिस. इफ फ्रॉम माइलॉइड देन इट इज referred as conventional disease, and if from lymphoid so it is called as plasma cytoid disease. और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है डेंड्राइटिक सेल का, अगर आप देखेंगे ये टॉलरेंस, इम्यून टॉलरेंस डेवलप कराने में, एडेप्टिव में डेवलप करने में हेल्प करता है. फंक्शन ऑफ द डेंड्राइटिक सेल्स, इसका तीन मेन काम है. वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज APC. It is functioning as antigen presenting cells. So this is antigen presenting cell यानी वो सेल जो एंटीजन को T सेल्स को प्रेजेंट करता है, या T सेल तब हेल्प वर्क करता है जब उसे एंटीजन कोई प्रेजेंट करता है, कोई देता है. तो ये काम डेंड्राइटिक सेल भी करता है. वन ऑफ द टाइप ऑफ APC इज डेंड्राइटिक सेल. So DCs are specialized to capture and process antigen, converting proteins into peptides that are presented on major histocompatibility complex and then it is recognized by the T cell. तो सबसे पहले DC जो है वो इसको यहीं पे समझ लीजिए क्योंकि आगे आपको ये हेल्प होगा एडेप्टिव में, कि सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि नो दिस इज नॉट आवर, दिस इज नॉन सेल्फ, दैट इज एंटीजन. उसके बाद उसके प्रोटीन्स को जो है वो पेप्टाइड्स में उसे कन्वर्ट करता है एंड देन जब उसका नेचर चेंज होता है उससे वो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी को प्रेजेंट कर देता है. एंड नाउ दिस मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी सेल विच इज हैविंग द प्रोसेस्ड एंटीजन, when it comes in contact with a T cell, जब ये ऐसा MSC मॉलिक्यूल जिसमें प्रोसेस्ड एंटीजन है और इसे प्रोसेस किसने किया, डेंड्राइटिक ने किया, और जब ये T सेल के कांटेक्ट में आता है तो T सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उस एंटीजन को किल करता है. सो इट इज फंक्शनिंग एज APC. APC आपने पहले देखा कि दोनों प्रकार के होते हैं, जो माइलॉइड से बने और जो लिम्फॉइड से बने. दोनों का ही काम होता है कि वो APC का काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि दोनों के जो मार्कर्स होते हैं, लोकेशंस होते हैं, जो
माइग्रेशन पाथवे होते हैं वो डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का काम सेम है, करने का तरीका द वे इज डिफरेंट बट द वर्क इज द सेम. नेक्स्ट इंड्यूस, इसका जो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज इट इंड्यूस इम्यून टॉलरेंस. So during the development of an adaptive immune response, the phenotype and functions of disease plays an extremely important role in initiating tolerance, memory cell, and polarized TH1, TH2 and TH17. TH मतलब T helper cell होता है, तो T helper cell के डिफ्रेंसिएशन में मदद करता है. ये टॉलरेंस मतलब बहुत एग्रेसिव रिएक्शन नहीं होना चाहिए. देन इट विल एक्ट अगेंस्ट आवर body's wellness. So that is, so it develops tolerance among the cells and it develops memory cell. तो अगर हम एक बार हम बीमार पड़े तो नेक्स्ट टाइम अगर वही पैथोजन या वही एंटीजन आता है तो हमारा बॉडी बहुत जल्दी उस पर रिस्पॉन्स कर देता है. तो दैट इज बिकॉज इट कीप्स मेमोरी. एंड थर्ड इज इट स्टिमुलेट्स टी सेल एंड बी लिम्फोसाइट. उसे स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, तब T and B lymphocytes जो है that act against the antigen. So this is the functions. तो ये अगर आप देख रहे हैं, so this is the dendritic cell, और ये जो है नेव T cell यानी जो एक्टिवेटेड नहीं है, that is T cell. So when dendritic cell come in contact with the एंटीजन, इट बिकम एक्टिवेटेड और ये नेव टी सेल को प्रेजेंट करता है उस एंटीजन को. तो जो ये टी सेल है दैट बिकम एक्टिवेटेड. तो जब टी सेल एक्टिवेटेड हुआ तो देखिए इससे IL-2 का सिक्रीशन होगा डेंड्राइटिक सेल का. तो द टी सेल विल डिफरेंशिएट इनटू टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी हेल्पर 1 cells. When TGF and IL-6 are secreted and IL-3 are secreted, so T helper सेल जो है T helper 17 सेल जो है वो डेवलप हो जाता है, जो एंटी इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून में रोल प्ले करता है. उसी तरह से जब डेंड्राइटिक सेल से IL-4 और IL-5 का सिक्रीशन होता है तो ये जो नेव टी सेल है, ये जो inactivated T cell है, that will differentiate into become activate and differentiates into T helper type 2 cells and they play major role in anti-infection, allergy and asthma. उसी तरह से जब डेंड्राइटिक सेल से TGF बीटा सिक्रीट होता है तो then it differentiate T cell into T regulatory type of cells. This is tolerance, autoimmune, यानी कि ये बाकी टी सेल को रेगुलेट करता है कि उसे कब वर्क करना है, कब स्टॉप करना है, कब आराम करना है. So this is the function of the dendritic cell. So you can see कि dendritic cell है तो innate immune का सेल, लेकिन ये adaptive immune cell को भी कंट्रोल करता है, हेल्प करता है. नेक्स्ट सेल इज मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. सो मोनोसाइट इसका सबसे बड़े ब्लड सेल्स होते हैं. मैंने यहाँ मैक्रोफेज और मोनोसाइट को एक ही साथ रखा है क्योंकि आप याद रखें जब ब्लड टिश्यू में रहता है, जब ब्लड में रहता है तो वो मोनोसाइट कहलाता है, लेकिन यही जब टिश्यू के अंदर चले जाता है, ब्लड से होते वो टिश्यू में पहुंचता है, देन वी रेफर इट एज मैक्रोफेजेस. सो डोंट गेट कंफ्यूज that what is monocyte and what is macrophages. So जब ब्लड में है तो वो मोनोसाइट है, जब वो टिश्यू के अंदर है तो वो मैक्रोफेजेस है. सो सेल साइज जो है इसका 12 to 20 माइक्रोमीटर होता है. इसका न्यूक्लियस जो है एसेंट्रिक, सेंट्रल या किडनी शेप्ड होता है. इसमें साइटोप्लाज्म काफी अधिक मात्रा में होती है. टोटल ल्यूकोसाइट पॉपुलेशन का ये 5 से 10% बनाता है. इसमें भी कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं लाइक एजेरोफिलिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग लाइसोजाइम, acid hydrolysis and myeloperoxidases. Monocytes arise from myeloid progenitor in the bone marrow. When monocyte enter into the damaged tissue with the help of chemoattractant by diapidases differentiate into macrophage. ये कैसे मैक्रोफेज बना वही आपको बता रहे कि जब भी कोई टिश्यू में कोई पैथोजन एंटर करता है तो या तो टिश्यू डैमेज हो गई, उससे कुछ केमिकल फैक्टर निकलेगा या वो पैथोजन से निकलेगा, उससे मोनोसाइट जो है वो अट्रैक्ट होता है. न्यूट्रोफिल की तरह याद रखिए कि ये भी माइग्रेशन करता है और ये भी डायपाइडेसिस करता है. तो डायपाइडेसिस और माइग्रेशन के द्वारा ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल से निकल कर ये टिश्यू में आ जाएगा एंड देन नाउ वी विल कॉल इट एज मैक्रोफेज.
So macrophage are tissue resident phagocytes and antigen presenting cell. Now macrophage also functions as phagocytosis and it is again a antigen presenting cell. जो मैंने डेंड्राइटिक सेल में आपको समझाया था, तो ये भी एंटीजन को प्रेजेंट करने में हेल्प करता है. तो मैक्रोफेजेस जो है ये फेजोसाइट्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करते हैं. इट कंटेन हिस्टियोसाइट्स एंड जायंट सेल्स. जब मोनोसाइट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं तो हम उसे हिस्टियोसाइट या जायंट सेल कहते हैं. लिवर के अंदर यही मोनोसाइट मैक्रोफेज बनता है और वो कुफर सेल्स कहलाता है. लंग्स में ये एल्वियोलर मैक्रोफेज या डस्ट सेल कहलाता है. बोन मैरो में ये ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट. देखिए बोन मैरो में ये ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन को डिफॉर्म करना और ऑस्टियोब्लास्ट यानी फॉर्मेशन ऑफ द बोन, दोनों ही काम करता है. स्किन में ये हिस्टियोसाइट्स कहलाता है. दिस इज द जनरेशन ऑफ द मोनोसाइट. तो आप अगर देख रहे हैं तो ये भी माइलॉइड सेल से बन रहा है. यहाँ पर आप देखेंगे कि माइलॉइड प्रिकॉर्सर से ये बन रहा है. माइलॉइड प्रिकॉर्सर से दिस ब्लड में जब रहेगा तो ये मोनोसाइट है, लेकिन जब ये टिश्यू के अंदर गया तो यही मोनोसाइट डेंड्राइटिक सेल भी बनाता है. ये मोनोसाइट कैन कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज आल्सो एंड मोनोसाइट कैन कन्वर्ट इनटू माइक्रोग्लियल सेल आल्सो. आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन दैट मोनोसाइट टिश्यू में with the help of factors, different factors, it can grow into dendritic cell. With other factors it develop into macrophage. With secretion of other factors it develop into microglial cell. तो blood में वो monocyte है, tissue के अंदर वो macrophage है. Activation pathway. So activation pathway जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है क्लासिकल एक्टिवेटेड मैक्रोफेज और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज. यहाँ पे आप दो अलग देख रहे हैं. दिस इज वन वे ऑफ एक्टिवेशन एंड दिस इज another way of activation. So there are two basic type of activation, way of activation. So this is microbes है और ये जो है मोनोसाइट है. So क्लासिकली एक्टिवेटेड में जो मैक्रोफेज होता है यहाँ पे आप देखोगे तो दिस विल सिक्रेट लाइसोसाइम एंजाइम्स. एक होता है लाइसोसाइम एंजाइम को सिक्रीट करेगा और ऑक्सीडेंट. हियर इट इज आल्सो सिक्रेटिंग ऑक्सीडेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेंट्स. सो ROS एंड NO. सो ऑक्सीडेंट को सिक्रीट करता है और ये क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ दोज एंजाइम्स एंड ऑक्सीडेंट फैक्टर्स इट विल किल द बैक्टीरिया, फंजाई और एंटीजन्स. सेकेंड होता है अगर ये इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12 या इंटरल्यूकिन 23 या कीमोकाइन अगर ये सिक्रीट करता है एंटीजन के संपर्क में आने के बाद, देन इट विल हेल्प इन द इन्फ्लेमेशन. सो विद दिस फैक्टर द मोनोसाइट helps in play its role in inflammation. With this factor it kills the microbes or pathogens. ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज में जो होता है आप देखिए यहाँ पर वो क्या हो रहा है. यहाँ पर दिस इज बीइंग एक्टिवेटेड बाय इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 14. तो अगर इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 14 जो 4 है, व्हेन इट एक्टिवेट मोनोसाइट then we called it as alternatively activated macrophage. Then what happen? It will either secrete growth factor and it will help in tissue repair या fibrosis को repair करने में help करेगा. If it secretes interleukin 10 or TGF beta, then it will work against inflammation. ये inflammation को कम करने में या inflammation ना हो उस पे मदद करेगा. तो दो वे हो गया. दैट इज अगर मोनोसाइट को एक्टिवेट कर रहा है माइक्रोब या इंटरफेरोन गामा, देन उसका जो एक्टिवेशन का तरीका है दैट इज क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज. इफ इट इज गेट अट्रैक्टेड बाय द और इट इज एक्टिवेटेड बाय द इंटरल्यूकिन 13 और 4, देन दैट इज ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेट मैक्रोफेज. और आप देखिए कि दोनों का जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है. सो फंक्शन ऑफ द मोनोसाइट और मैक्रोफेज तो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि वो फेजोसाइटोसिस में
मदद करता है, वो टिश्यू रिपेयर में मदद करता है, वो इन्फ्लेमेशन भी करवाता है। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स में कि वो इन्फ्लेमेशन भी करा सकता है या वो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह करता है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एपीसी। सो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में काम करे। तो आप फिर से देखिए कि it is a part of the innate immune system, but it is also functioning in adaptive immune system by activating the T cells. So something, this is the transition between, they are helping both sides. ये एक junction बनाते हैं between the innate system and between the adaptive system. So this was that was all about the cells which are responsible for the innate immune system, and these are the references. My thanks to all these references from where I have taken all the matters to make this preparation. Thank you everyone. My second part will be cells of the adaptive immune system. Thank you.